हैं परमेश्वर, स्तुति के योग्य, आराधना के योग्य प्रभु तू है। हृदय के गहराई से हम मिलकर तेरे नाम को स्तुति करते हैं, तारीफ करते हैं। हालेलुया, वी गिव यू ऑल ग्लोरी एंड ऑनर टू यू फादर। फिर से परमेश्वर तूने अवसर दिया है ताकि हम मिलकर तेरी उपस्थिति में आ सके, उपवास और प्रार्थना के साथ प्रभु। हालेलुया, हम तेरी ओर आते हैं परमेश्वर। तू हमें अगुवाई कर परमेश्वर, तू हमें मदद कर परमेश्वर। हालेलुया, तू हमारे बीच में है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, तेरे समान और कोई नहीं है प्रभु। यीशु राजा, तेरे जैसा और कोई नहीं है। आज परमेश्वर पूरे हृदय की गहराई के साथ प्रभु हम आपकी ओर आते हैं परमेश्वर, तू हमें अगुवाई कर। हालेलुया, आइए हम लोग मिलकर प्रार्थना करें। Father, we want to thank you, we want to worship you, we want to give you all glory and honor to you, Father. Oh, there is no one like you, Father. Hallelujah. There is no one like you, Jesus, who is worthy to be praised. Hallelujah. Whose name is lifted higher. We lift your name higher, Father. Guide us, Holy Spirit. Lead us, Holy Spirit. Oh, hallelujah. We give you all glory, all honor unto you, Jesus. हमें अगुवाई कर परमेश्वर। हालेलुया, ओह हालेलुया, लॉर्ड, देयर इज नो वन लाइक यू। हालेलुया, you deserve the glory. Why don't we sing this song? You deserve the glory and the honor. Oh hallelujah, and worship our living God. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. You deserve the glory. Yes Father, we thank you and the honor. Lord, we lift our hands in worship. Amen. As we lift your holy name, you deserve the glory. Oh, you and deserve the honor. And the honor. Lord, we lift our hands in worship. Oh. As we lift your holy name, for you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. Oh yes Lord. There is no one else like you, for you are great. You do miracles so great. Yes There is Lord. no one else like you. Father, we thank you, There Lord. is no one else like We love you, Jesus. We love you, Jesus. Hallelujah. Rikamana wa shantarariyama. महिमा आदर महिमा आदर करते हुए अपने हाथ उठाकर हम Amen. आराधना करते हैं। महिमा आदर करते हुए Praise your अपने holy हाथ Thank you, उठाकर Jesus. हम Amen. आराधना करते हैं। तू शक्तिमान yes, Lord. अब काम तू We worship करता you, है, Father. नहीं तेरे जैसा कोई, Oh. नहीं तेरे जैसा कोई। तू शक्तिमान Amen. अब Hallelujah. काम तू करता है, नहीं तेरे जैसा कोई। Amen. 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 नहीं तेरे जैसा कोई। We worship you, For Lord. you are great. You are You do great. miracles so great. Amen. There is no one else like you. Oh yes Lord. There is no one else like you. For you are great. You are do great. miracles so great. Oh, yes, There is Lord. no one else like you. Father, we thank you. We There is thank you. no one else like you. We give you glory, we give you honor unto you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. तेरे समान और कोई नहीं है, तेरे जैसा और कोई नहीं है प्रभु। हृदय की गहराई से प्रभु हम आपको स्तुति करते हैं, तारीफ करते हैं। यीशु राजा, तू हमारे साथ है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। तू हमारे बीच में है, इसलिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. We humble our lives before you, Lord. Oh, we seek your presence in this morning. We seek your presence, Holy Spirit. Lead us, Lord. Hallelujah. Lord, wherever we are,
फादर हालेलुया, जहां प्रभु हम आपकी उपस्थिति को महसूस कर सके परमेश्वर, हालेलुया, हम आपकी उपस्थिति को महसूस कर सके प्रभु, तू हमें अगुवाई कर, तू हमें मदद कर परमेश्वर, हालेलुया। Oh, we thank you, Jesus. We thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, we glorify, we praise you, we praise you, we praise you, we praise you. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, hallelujah. We glorify you, Lord. We glorify you, Lord. We glorify you, Lord. There is no one like you, Jesus. There is no one like you, Jesus. Hallelujah. 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 Oh, we give you glory. We give you glory. Hallelujah. जहां पर भी हो, हमारे आवाज को उड़ाकर थोड़ी देर परमेश्वर को स्तुति करना शुरू करें। Hallelujah. हमारे आवाज को उड़ाकर, Hallelujah. Let us together raise our voice and start praising our living God. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Oh, we worship you. We worship you. We praise you. We praise you. We praise you. Oh, hallelujah. 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 हालेलुया, हालेलुया। आराधना की योग्य प्रभु तू है। आइए हम लोग और कुछ गीत और गाकर परमेश्वर को आराधना करें। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। वी वर्शिप यू लॉर्ड, वी प्रेज यू जीसस। कोई नहीं, आमेन। तुम सा कहीं नहीं। Oh yes Lord Jesus, hallelujah. अब है पूरा यकीन, Yes Lord, hallelujah. तुम सा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं है तुम प्रभु। सा कोई नहीं, We glorify, तुम सा कहीं नहीं, we lift your holy अब name. है पूरा यकीन, Oh yes तुम Lord, सा कोई नहीं, यीशु। Oh yes Lord, मसीह, ओ महिमा तेरी, amen, hallelujah. Oh yes Lord, Jesus, we love you Lord. तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, We glorify your तुम सा name. कोई नहीं, Oh yes Lord, तुम सा कोई नहीं, glorify you Lord. We worship you तुम Lord. सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं, अंधेरों में तू रोशनी Yes, Lord. है, Hallelujah. तू ही मंजिल, तू रास्ता भी है, Yes. तू है जहाँ न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी ही है, अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल, तू रास्ता भी है, तू है जहाँ न कुछ कमी है, तेरा
Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. We thank you, we worship you, we give you glory, we give you honor unto you, Lord. तेरे प्रभु तेरे जैसा कोई नहीं है. धन्यवाद यीशु. हालेलुया. There is no one like you, Lord. आइए हम लोग मिलकर हमारे कलीसिया के लिए प्रार्थना करना जा रहे हैं. Let us raise our voice and pray together. Hallelujah for our church. आइए हम लोग मिलकर हमारे कलीसिया के लिए प्रार्थना करना है. किस चीज के लिए हम लोग प्रार्थना करना है? प्रार्थना करें प्रभु हमारे कलीसिया के हर एक परिवारों को प्रभु तेरी लहू में छुपाकर संभाल कर रखे. Lord, you protect them and be with them, Lord, और गाइड them, Father. प्रभु आप सारे लोगों को प्रभु पवित्र आत्मा गाइड करने के लिए प्रार्थना करें. प्रभु उसको अगुवाई करने के लिए प्रार्थना करें. परमेश्वर उसके साथ बने रहने के लिए प्रार्थना करें. कोई भी तरीका का आत्मिक मृत्यु और शारीरिक मृत्यु हमारे कलीसिया में ना हो. हालेलुया. और मिलकर प्रार्थना करें प्रभु कोई भी कमजोर ना हो, शारीरिक तौर से कमजोर ना हो. परमेश्वर प्रभु तेरा अभिषेक से बने प्रभु. हालेलुया. जो कोई आपको भरोसा करते हैं प्रभु वो निरंतर 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 प्रभु जी आपसे बल प्राप्त कर कर आगे चलते हैं प्रभु. प्रभु हमारे हर एक फैमिलीज को तेरी लहू में छुपाकर प्रार्थना करें. हालेलुया. आवाज सुनगुड़ाकर आइए मिलकर. हालेलुया. Let us pray together. Hallelujah. Pray to God, Lord, in this day as we are fasting and praying. Lord, this is our prayer, Lord. Every families, hallelujah, should be enriched with the presence of God. हर एक परिवार प्रभु हालेलुया आप में आगे बढ़ने के लिए तो सहायता करे. इस सीजन में प्रभु जी कोई भी कमजोर ना हो, कोई भी आत्मिक तौर से पीछे ना हटे, विश्वास कमजोर ना हो प्रभु जी. उसके आशा हालेलुया प्रभु जी हालेलुया आशा हट ना पाए प्रभु. तेरा बल से तू भरे. ओ रबा शानदार. हमारे बच्चों को, हमारे संतानों को, हमारे जवानों को, हमारे बुजुर्गों को, हमारे परिवारों को यीशु नासरी के नाम से तेरे हाथों में सौंपते हैं. हम मिलकर प्रार्थना करते हैं. आवाज सुनगुड़ाकर हम लोग मिलकर प्रार्थना करें. हुडाबा राखाबा शांतोर याखामानाबा शामदरे. हालेलुया. प्रभु जी कोई भी पारिवारिक समस्या किसी के फैमिली में ना हो, कोई कमी कटी ना हो यीशु नासरी के नाम से. रीबाबा शांतोर याखामानाबा शामदरे. प्रभु जी कोई भी यदि कोई भी शारीरिक तौर से कमजोरी में है, कोई भी प्रभु जी हालेलुया किसी तरीका का बीमारी से हालेलुया ग्रसित है, ओ हालेलुया कोई भी हालेलुया दुष्टात्मा की हालेलुया शक्ति से पीड़ित है, यीशु नासरी के नाम से इसी वक्त हम लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं प्रभु. हुडामा राखाबा शांतोरिया मना. मिलकर प्रार्थना करें, मिलकर प्रार्थना करें. आज प्रार्थना के लिए हम लोग आज का सुबह, आज का दिन हम लोग अलग किया है. हालेलुया. हमारे जवान लोग आज हालेलुया चेन प्रेयर कर रहा है. प्रार्थना करें. परमेश्वर हमारे कलीसिया के हर एक जवानों को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं. Holy Spirit, oh hallelujah, Lord, change their life, transform their life. मिलकर प्रार्थना करें. हुडा राखा बाशांतो याखा माना बाउ शामदरा. लॉर्ड जितना लोग प्रभु हमारे कलीसिया में आते हैं प्रभु जी वो इस दिनों में हमारे इस मीटिंग्स में नहीं जुड़ पाते हैं, उस सब को तेरे हाथों में सौंप कर हम लोग प्रार्थना करते हैं. प्रभु जी नया परिवार लोग हमारे साथ जुड़ रहा है प्रभु उसको भी तेरे हाथों में सौंपते हैं. लॉर्ड वर्क इन देयर लाइफ, डू मिरेकल्स इन देयर लाइफ. लॉर्ड एज टुगेदर कलीसिया आज हम लोग निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु. जितना विषयों के लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर उस सारे विषयों के लिए प्रभु तू बड़े कार्य कर प्रभु. हो राबा शांतोरिया. थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट. हालेलुया. वी लव यू जीसस. आइए मिलकर 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 आवाज सुंगुड़ाकर प्रार्थना करें. ओ राबा शांतोरिया खामाना बहु शांत. अन्य भाषाओं से प्रार्थना करें. प्रभु से कहिए प्रभु प्रभु ये आपकी कलीसिया है, ये आपका देह है प्रभु. प्रभु जी उसको तू मजबूत करे. हालेलुया. री बाबा शांतोरिया. तू उसके बनाए परमेश्वर. ओ जिस जो मेरे मंदिर को नाश करेगा मैं उसको नाश करूंगा. प्रभु ने ऐसे कहा है. हालेलुया. प्रार्थना करें प्रभु कोई भी शक्तियां प्रभु आपकी कलीसिया को तोड़ ना पाए. हालेलुया. प्रभु आप मेरे परिवारों को तोड़ ना पाए. हुडामाना रखाबा शांतुरिया खामाना बहु शामदर. स्पिरिचुअल मैच्योरिटी प्रभु हमारे कलीसिया के हर एक सदस्यों को दे. ओ पवित्र आत्मा के सामर्थ्य अगुवाई दे परमेश्वर. बाबा शांतुरिया. Will you pray right now? Will you pray? जहां पर भी हो
अपने आवाज़ों को उड़ाकर इस विषयों के लिए प्रार्थना कर सके। Hallelujah. Let's raise our voice and pray. Raise our voice and pray. Hallelujah. Rikamana ba shantoria mana. Yes, Lord. We uphold our church. We uphold our families. We uphold our children. We uphold our young people. In the mighty name of Jesus. Oh, Rababa Shantororia Kamana ba Shantere. Ribaba na Kama Shanteri Kamana ba Shantoria mana. Thank you, Holy Spirit. We love you. We love you. We praise your holy name. We praise your holy name. We praise your holy name. Yes, Lord. प्रभु जी हालेलुया, हमारे कलीसिया के हर एक सदस्यों को एक अच्छा इवेंजलिस्ट बनाइए प्रभु। हालेलुया, एक अच्छा इवेंजलिस्ट बनाए परमेश्वर। ओ राबा शांतो रेखा बा शंतरे रियमदना। जब हम इस सीजन से बाहर आ जाते हैं प्रभु, जब हम लोग बाहर आ जाते हैं प्रभु, हम आपके बड़े कार्यों को देख सकें। हालेलुया, डिक्लेयर इट, प्रोफेसी इट, बाय फेथ डिक्लेयर इट। We could see greater things. We should see greater things. We should see new families. We should see new projects. Amen. Hallelujah. For our church. प्रार्थना करें, प्रार्थना करें प्रभु, नया कार्य तू करे प्रभु। जब हम लोग इस सीजन से बाहर जब आते हैं प्रभु, वो हमारे लिए बड़े कार्य रखा है। विश्वास से देकर भविष्यवाणी करें। हालेलुया, हमारे बच्चों के लिए प्रभु तू बड़े भविष्य रखा है। Amen. Hallelujah. Rika mana kaba shante riba raka mana thuda mana rika mana. Lord, hallelujah. I will see, surely I will live and see the goodness in the land of the living. Amen. Declare it. Oh Rabba Shanturia mana. Oh hallelujah. Oh Rika Bashanteria mana gadana. Rika Bashandara. Amen. 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 Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. हमारे कलीसिया के स्थिति को तू बदले, परिवारों की स्थिति को तू बदले। Holy Spirit, hallelujah. रिबा नाबा रबा रबा शंतरे। हम मिलकर प्रार्थना करते हैं, हम मिलकर तेरे नाम को स्तुति करते हैं। Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, hallelujah. As David says, Lord, for by you I can run against a troop. By my God I can leap over a wall. Hallelujah. जैसा कि दाऊद कहता है कि परमेश्वर तेरे द्वारा मैं सेनाओं पर जीत सकता हूं और तेरे द्वारा मैं बड़ी बड़ी दीवारों को, शहर पनाहों को लांघ सकता हूं। Amen. Say it and declare it in the name of Jesus. Amen. इस बात की घोषणा करिए अब यीशु के नाम से। Oh, and say to God, Lord, in this day that we declare it. परमेश्वर से कहिए, परमेश्वर आज के इस दिन में हम इस बात की घोषणा करते हैं। We declare it, Lord, in the name of Jesus. Hallelujah. यीशु के नाम से घोषणा करते हैं इस बात की। Will you declare it right now? क्या इस वक्त आप घोषणा करेंगे? Will you declare it right now? Hallelujah. क्या अभी इस वक्त आप घोषणा करेंगे? Wherever you are. Amen. Amen. जहां पे भी आप हैं, आप घोषणा करिए। By the strength of God, say it. By the strength of God. Hallelujah. अब बोलिए, परमेश्वर के बल के द्वारा। Oh, I can do it. I can do it. Hallelujah. मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। Riba bana kaba shanteria mana gadana rika mana ba shantoria mana. Holy Spirit, we thank you. We thank you. We thank you. आत्मा धन्यवाद। We thank you. We thank you. We thank you. We thank you. धन्यवाद 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 धन्यवाद। Udamana baba shantoria mana. Yes, with my God I will be able to do it. Say it. और इस बात को बोलिए, हाँ मैं अपने परमेश्वर के द्वारा ऐसा कर पाऊंगा। Yes, Lord, I will do it through my God who gives me strength. और मैं अपने परमेश्वर के द्वारा ऐसा कर पाऊंगा जो मुझे बल देता है। Hallelujah. I will run against the troops. Amen. और मैं सेनाओं के विरोध में दौड़ूंगा। I can leap over a wall. और मैं शहर पनाहों को लांघूंगा। Yes. Hallelujah. Lord, in these days, Lord, you renew the strength of our young people. परमेश्वर, इन दिनों में आप हमारे जवानों के बल को नया करिए। Riba baba nakaba shantere. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Fill them with the new anointing, Holy Spirit. उन्हें नए अभिषेक से भरिए पवित्र आत्मा। Fill them with your new anointing, Holy Spirit. पवित्र आत्मा उन्हें अपने नए अभिषेक से भरिए।
Will you pray? Will you pray that let our children be filled with the anointing of the Holy Spirit right now? Hallelujah. और क्या आप प्रार्थना करेंगे हमारे बच्चे पवित्र आत्मा के बल से अभिषेक से इसी वक्त भरने लगे। Everybody raise our voice and pray to God. Let all our children be filled with the Holy Spirit. हर कोई अपनी आवाज को उठा के परमेश्वर से प्रार्थना करे कि हमारे सारे बच्चे पवित्र आत्मा से भरे। Ho rabana khaba shanteria managada. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Father, we seek, we ask, let the miracles happen in our families, Lord. पिता हम इस बात को मांगते हैं कि हमारे परिवारों में चमत्कार होने पाए। Yes, Lord. प्रार्थना करें प्रभु हमारे देश के ऊपर रहम कर प्रभु। Oh, Rika Baba Shantoria. Have mercy on our city, our nation. हमारे शहर पे हमारे राष्ट्र पर दया करिए प्रभु जी। We know that what is happening around us. Let's pray together. Let's pray. Uphold our city, uphold our Uttar Pradesh, our state, and our country. Let's, as we pray together, I request Amit to lead us in prayer. Pray for Uttar Pradesh. Hallelujah. Pray for our city. Pray for our nation. Hallelujah. मिलकर हम लोग जानते हैं हमारे शहर में, हमारे राष्ट्र में, हमारे प्रदेश में क्या हो रहा है। आइए हम लोग सब मिलके इस वक्त प्रार्थना करें इन विषयों के लिए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद मेरे यीशु प्रभु जी। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी। आज हम जीवित हैं प्रभु जी, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु आपने हमें जिंदों की जमीन पे रखा प्रभु जी, ताकि आपकी आराधना कर सके, आपकी भलाई को देख सके, आपकी करुणा को, आपकी दया को अपने जीवन में देख सके। उसके लिए प्रभु आपका धन्यवाद पिता। इस वक्त हम मिलके एक मन, एक हृदय, एक आत्मा से प्रार्थना करते हैं प्रभु जी अपने शहर के लिए प्रभु जी। हम लोग कानपुर के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपकी दया इस शहर पर होने पाए प्रभु जी। जो कमियां मेडिकल फैसिलिटीज में है प्रभु, वो पूरी होने पाए यीशु के नाम से प्रभु जी। जिन लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत है, उन्हें ऑक्सीजन मिलने पाए प्रभु जी। लेकिन हर चीज से बढ़कर परमेश्वर आप उन लोगों के ऑक्सीजन बनिए प्रभु जी। आप उनके लिए सांस बनिए प्रभु जी, कि वो लोग आप में सांस लेने पाए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते उत्तर प्रदेश के लिए प्रभु। इस वक्त प्रभु जी सभी शहरों में प्रभु जब ये समस्या चल रही है प्रभु, मैं चाहता हूँ आप दया करें प्रभु जी। सारी चीजों को आप पूरा करें पिता, लोगों पे दया करें प्रभु जी। लोग चंगे होने पाए प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है पिता, प्रभु जी उन परिवारों के साथ रहिए, उन्हें अपना बल दीजिए, अपनी शांति से भरिए प्रभु, अपने आनंद से भरिए प्रभु जी। और हम प्रार्थना करते हैं इस वक्त मिलके अपने इस देश के लिए प्रभु। हम सब जानते हैं इस देश में क्या हालात है, पूरा दुनिया इस वक्त देख रही है प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं पिता, इस देश पे आप दया करें प्रभु जी। इस देश पे बचाया जाए यीशु के नाम से, ये देश बचाया जाए यीशु के नाम से। इस देश के लोग प्रभु जी आपके नाम के द्वारा बचाए जाए प्रभु, उनको चंगाई मिलने पाए प्रभु जी। और हम चाहते हैं कि उनकी शारीरिक चंगाई से ज्यादा उन्हें आत्मिक चंगाई मिलने पाए प्रभु। वो आत्मिक उद्धार को पाने पाए प्रभु जी। वो आपको जानने पाए मेरे यीशु, वो जानने पाए कि आप हर एक व्यक्ति से कितना प्यार करते हैं पिता। प्रभु जी दया करिए, हमारे देश को चंगा करिए। आज हम इस दिन को अलग करते हैं और अपने देश के लिए मध्यस्थता करते हैं प्रभु जी। जिस प्रकार से मूसा ने इजराइलियों के लिए आपसे मध्यस्थता करी, उसी प्रकार से हम अपने देश के लिए मध्यस्थता करते हैं प्रभु। हम जानते हैं हम सबसे गलतियां होती हैं, लेकिन वो हमारी गलतियों से बढ़कर आपकी दया है प्रभु, आपका अनुग्रह है। हमारे देश पर दया करिए प्रभु जी, और हमारे देश को चंगा करिए, हर एक लोग को चंगा करिए। सभी व्यवस्थाओं को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी, उन्हें पूरा करिए, लोगों के लिए इंतजाम करिए प्रभु जी। वो आपकी भलाई को, आपके हाथ को अपने जीवन में देखने पाए प्रभु जी। और सारा आदर महिमा प्रभु जी केवल और केवल आपको मिले, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया प्रभु, हालेलुया। हमें सहायता करे परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। लीड अस लॉर्ड। प्रभु आइए हम लोग मिलकर हमारे साथ जितना लोग प्रभु की दास लोग सेवा करते हैं, उस सबको प्रभु के हाथ में सौंप कर प्रार्थना करें। We have to pray for all the work, all the servants of God who works with us, and let's uphold them in our prayers and continuously pray for the servants of God who is in the mission field. हम उसके लिए और उसके परिवार के लिए प्रार्थना करना बहुत अनिवार्य है। It's so needed in these days to pray for the servants of God who are in the mission field, who are serving the Lord. और इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम उन परमेश्वर के दासों के लिए प्रार्थना करें जो लोग इस वक्त सेवकाई पे हैं। Hallelujah. We have to uphold them in our prayers. हमें उन सभी को अपनी प्रार्थना में थामना है।
We have to uphold their families in our prayers. उनके परिवारों को अपनी प्रार्थनाओं में रखना है। Hallelujah. Hallelujah. Why don't we raise our voice and pray for all the dear servants of God who works in Kanpur, in Uttar Pradesh, in our nation, hallelujah, in all the states, wherever they are, Father, cover them and cover their family under your wings, Holy Spirit. और हम प्रार्थना करें उन सभी दासों के लिए जो इस वक्त उत्तर प्रदेश और पूरे राष्ट्र भर में अलग अलग स्थानों पर काम करते हैं, उनके परिवारों को हम लोग अपनी प्रार्थनाओं में रखें। Father, help them and guide them and lead them and protect them, provide them. पिता, उनकी सहायता करिए, उनका मार्गदर्शन करिए, उनको सुरक्षा दीजिए प्रभु जी, और उनके लिए प्रबंध करिए। Some of them have left their home place and they came to Lord, hallelujah, they dedicate their life for that land. And Father, we pray that, Lord, cover them under your wings, Holy Spirit. और उनमें से कुछ लोगों ने under your wings. अपने स्थानों को छोड़ के परमेश्वर आपके लिए जाके वो सेवकाई कर रहे हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि उन सभी को आप अपने पंखों में ढाक लीजिए। Lord, we pray for all the pastors, all the ministers, all the leaders, all those who are involved in any kind of ministry. Father, हम लोग उसको तेरे लहू में छुपाते हैं, जहां वो शहर में हो, विलेज में हो, टाउन्स में हो, कहीं पर भी हो प्रभु, तेरे पंगों तले प्रभु तू तेरे दासों को छुपा कर रखे, अगुवाई करिए, कलीसियाओं को तू अगुवाई करिए, मिनिस्ट्रीज को तेरे हाथों में सौंपते हैं, लीडर्स को तेरे हाथों में सौंपते हैं, हमारे AGNI का लीडर्स को तेरे हाथों में सौंपते हैं, हमारे नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ऑफ असेंबलीज ऑफ गॉड के लीडर्स को तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु अगुवाई कर, प्रभु हालेलुया प्रोटेक्ट कर, मदद कर, सहायता कर प्रभु। धन्यवाद यीशु राजा। We pray also for our leaders of our nation. हमारे देश की लीडर्स के लिए भी हम लोग दुआ करते हैं प्रभु। हालेलुया। बुद्धि दे, ज्ञान दे प्रभु, समझ दे, तेरे भय से भरिए, तेरी ज्ञान से भरिए प्रभु, इस देश को चलाने के लिए सहायता कर प्रभु। Holy Spirit, fill them with your love, Lord Jesus. प्रेम से भरिए परमेश्वर। Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. If you have any other prayer request, please mention now. We are going to pray for this. यदि आपके पास और कोई प्रार्थना विषय है, इसी वक्त आप लोग बांट सकते हैं, हम लोग उस विषयों के लिए प्रार्थना करें। There is another request that is pray for the children, those who are preparing for their exams. You know, most of the exam has been postponed. कुछ एग्जाम्स ऐसे हैं वो पोस्टपोन कर दिया है, लेकिन प्रार्थना करें जितना लोग प्रभु मेन एग्जाम्स के लिए तैयार हो रहा है, हम उस सब को तेरी हाथों में सौंप कर प्रार्थना करें। आमीन। आज SABC का ग्रेजुएशन होने वाला है। हमारे 3 स्टूडेंट्स इज गोइंग टू ग्रेजुएट, संदीप, पीयूष एंड सनी। प्रे दैट मे गॉड हेल्प देम एंड गाइड देम। Pray for the future of our young people. हमारे जवानों के भविष्य के लिए प्रार्थना करें, उसकी पढ़ाई के लिए, आगे स्टेप्स के लिए। कुछ लोग फुल स्टॉप में खड़े हैं। I mean, they don't know what is going to happen. Let me tell you, my brothers and sisters, ये बात मैं कहना चाहता हूँ, कभी भी हमारे बच्चों के ऊपर दबाव ना दे। Hallelujah. They are also in a dilemma. Our young people are in a dilemma. So pray that, God, you have a better future for our children. हमारे बच्चों के लिए प्रभु तेरे पास एक बड़ी योजना है। केवल हम लोग इस चीज के लिए प्रार्थना करें, प्रभु वो योजना उसके जीवन में पूरी हो जाए। Nothing else. Don't pressurize them. Don't put them in trouble. Let's keep praying. Only प्रार्थना can change everything. Only prayer can change everything. Let's keep praying. Please keep praying. Praying to God. Lord, let all the closed doors be open for our young people, for our children. हमारे बच्चों का भविष्य हमारे हाथ में नहीं है, हमारे जवानों की भविष्य हमारे हाथ में नहीं है। It's in God's hand. They are safe in God's hand. They are safe in God's will. They are safe in God's purpose. Let's keep praying. ये केवल इस चीज के लिए प्रार्थना करना है, प्रभु तेरी योजना में बने रहने के लिए हमारे बच्चों को सहायता करें। प्रभु जी, हम लोग कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया है महामारी आए, हमारे बच्चों के भविष्य आगे वाले स्टेप्स को, स्टडीज को अफेक्ट करे, हैं, सो हमारे प्लान्स को अफेक्ट करे। कभी हमने सोचा नहीं। द लाइफ इज लाइक दैट। जीवन ऐसे ही है, कभी भी ऐसे बातें हमारे जीवन में हो सकते हैं।
accidentally anything can happen. But our children, our young people, our future, हमारे योजना, हमारे भविष्य, हमारे plans, हमारे purpose, everything is secure in God's hands. Amen. Hallelujah. Do you believe that? क्या आप ये बात को विश्वास करते हैं? Do you believe this thing? करते हैं कि हमारा भविष्य, हमारा आने वाला समय परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित है. Amen. If you believe that, let's raise our voice. I cannot see you, but anyway, wherever you are, raise your voice, raise your hands and say, yes, Lord, my future plans, my tomorrow is safe in your hands. और यदि आप विश्वास करते हैं तो जहां पे भी आप हैं अपने हाथों को उठाकर बोलिए, हाँ परमेश्वर, मेरा भविष्य, मेरा आने वाला कल आपके हाथों में सुरक्षित है. Amen, 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 amen. You have to declare it right now. आपको इस बात की घोषणा करनी है अभी. You have to declare it right now. Hallelujah. आपको इस वक्त घोषणा करनी है. Amen. Will you do that? Will you do that? Amen. क्या आप करेंगे ऐसा? Lord, my future is not in the hands of our nation. My future is in the hands of God. परमेश्वर, मेरा भविष्य मेरे राष्ट्र के हाथों में नहीं लेकिन परमेश्वर के हाथों में है. My future is not in the hands of any humankind, any human being, or any pandemic. It's not going to be affected by any of the things that's happening around the world. It's safe and secure in the hands of the Lord. और मेरा भविष्य किसी मनुष्य के हाथ में नहीं, वो किसी महामारी के हाथ में नहीं, और जो भी परिस्थिति चल रही है उसके हाथ में नहीं, लेकिन वो परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित है. Hallelujah. Will you declare it? क्या आप घोषणा करेंगे? Hallelujah. Say it loudly. बोलिए, जोर से बोलिए इस बात को. Amen, 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 amen. Our tomorrow is safe in the hands of God. हमारा कल परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित है. Not only ours, our children's future is also safe in the hands of God. और केवल हमारा ही नहीं लेकिन हमारे बच्चों का भी भविष्य परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित है. Amen. Hallelujah. I know that this is a day that we dedicate to pray. और मैं जानता हूँ ये आज का दिन है जो हम लोग प्रार्थना के लिए अलग करते हैं. Amen. And we dedicate this day for praying. The young people, our youths are having a chain prayer. और आज के इस दिन को हम लोग ने अलग किया और हमारे जो जवान लोग हैं उनकी एक चेन प्रार्थना चल रही है आज. And then after that we have our watch night prayer. और उसके बाद हमारी रात की वॉच नाइट प्रार्थना है. So this is wonderful, to be separate this day in prayer. और बहुत ही अच्छा है कि इस दिन को हम लोग ने पूरी तरीके से प्रार्थना के लिए अलग किया. Hallelujah. And our God is in our midst, and it's so wonderful to be in the presence of God. It's so good to और be. हमारा परमेश्वर हमारे बीच में है और बहुत ही अच्छा है परमेश्वर की उपस्थिति में होना. In Genesis chapter 13 verse 1 to 5 when you read, उत्पत्ति 13 जब 1 से 5 आप पढ़ते हैं, the Abraham went out of Egypt. उस वक्त हम देख पाते हैं कि अब्राहम मिस्र के बाहर गया. And he and his wife and all he had and Lot with him went into the south. वो उसकी पत्नी और जो कुछ भी उसके पास था और लूत, वो लोग वहां से बाहर निकले. And Abraham was very rich in cattle and silver and in gold. और इब्राहिम अपनी भेड़ बकरी सारी संपत्ति में बहुत ही ज्यादा धनी था. He went on his journey from south even to Bethel unto the place where his tent has been at the beginning. और वो अपनी यात्रा में वो दक्षिण से बेथेल की ओर गया जहां पर उसका तंबू शुरुआत में लगा था. Unto the place of the altar which he had made there at the first. और वो उस स्थान पे गया जहां पे उसने वेदी बनाई थी शुरुआत में. And there Abraham called on the name of the Lord. और वहां पर उसने परमेश्वर को पुकारा था. And the Lot also went with Abraham. और लूत भी इब्राहिम के साथ गया था. Amen. Abraham is on a journey. इब्राहिम एक यात्रा पर है. He has just obeyed God because God has called him to go to a land which God is going to show him. और उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना क्योंकि परमेश्वर ने उसको पुकारा था, उसको बुलाया था एक ऐसी भूमि दिखाने के लिए, ले जाने के लिए जो परमेश्वर उसको दिखाएंगे. He knew that God has a purpose behind his calling. वो जानता था कि परमेश्वर का एक उद्देश्य उसकी बुलाहट के पीछे. God blessed him. He was really rich. परमेश्वर ने उसको आशीष दी और वो धनी था. But one thing that I found in Abraham's life was he gave important to build altar
in every phase of his life. लेकिन एक चीज जो मैंने इब्राहिम के जीवन में पाई वो ये थी कि वो अपने जीवन के हर एक पल में, हर एक पहलू में वो वेदी को बना रहा था। Amen, amen, amen. How important is altars in our life? और कितना जरूरी है हमारे जीवन में वेदी का होना। As long as Abraham was walking with God, और जब तक इब्राहिम परमेश्वर के साथ चलता रहा, the altar was one of his priority. तब वेदी उसके लिए एक प्राथमिकता थी। Jonathan Edward became the father of a great awakening because he knew his purpose. जॉनथन एडवर्ड एक बहुत ही बड़ी जागृति के पिता बने क्योंकि उनको अपना उद्देश्य पता था। Charles Finney brought revival during the Civil War because he was focused. और चार्ल्स फिनी जो थे वो एक बड़ी जागृति को लेकर आए उस युद्ध के समय में। क्यों? क्योंकि उनका ध्यान केंद्रित था। John Wesley preached to the miners, coal mines with great success because of commitment. और चार्ल्स वेस्ली ने भी उसमें उस वक्त प्रचार किया और वो लोग जो कि छोटे थे, जो काम करते थे, उनको भी जागृत किया। John Knox shook Scotland with his prayer because he was a man who knew his priorities. और जॉन ने स्कॉटलैंड को पूरी प्रार्थनाओं से हिला दिया क्योंकि वो जानता था कि उसके लिए प्राथमिकता क्या है। These four things we can see in the life of Abraham. और ये चार चीजें हम लोग इब्राहिम के जीवन में देख सकते थे। The first one, he knew his priorities. और पहली चीज वो अपनी प्राथमिकता को जानता था। Second, he knew his purpose. दूसरा वो अपने उद्देश्य को जानता था। And the third, he was focused. और तीसरा वो उसका ध्यान केंद्रित था। And the fourth, he was committed. और चौथा वो समर्पित था। In this morning, आज की सुबह in our walk, daily walk with the Lord, परमेश्वर के साथ हमारी जो रोजाना की चाल है, we can call Abraham's walk is a walk of faith. और हम लोग कह सकते हैं कि अब्राहम की जो चाल थी वो एक विश्वास की चाल थी। Hallelujah. Every day he walked with God, he looked unto God for his direction. हर दिन वो परमेश्वर के साथ चलता था और परमेश्वर की ओर देखता था सही दिशा पाने के लिए। Amen. Every day he walked in the priority of God. हर दिन वो परमेश्वर की प्राथमिकता में चलता था। So one of the priority was altars. और एक प्राथमिकता उसकी थी वेदी। You know, in the Bible we can see when men who walked with God, there is always men who walked with men. और हम बाइबल में देख सकते हैं कि वो मनुष्य जिन्होंने परमेश्वर की ओर देखा वो हमेशा वो मनुष्य रहे जो दूसरे मनुष्यों के साथ चले। There have been always been men who walked with God, and there have always been men who walked with men. और ऐसे लोग रहे जो परमेश्वर के साथ चलते थे और ऐसे लोग रहे जो पुरुषों के साथ, मनुष्यों के साथ चलते थे। Abraham walked with God. इब्राहिम परमेश्वर के साथ चला। Lot walked with Abraham. और लूत इब्राहिम के साथ चला। David walked with God. दाऊद परमेश्वर के साथ चला। Joab walked with David. और जोआब दाऊद के साथ चला। Paul walked with God. पौलुस परमेश्वर के साथ चला। But Demas walked with Paul. लेकिन देमास पौलुस के साथ चला। Amen. So we can see always people who walk with God, and also we can see people who walk with God. We हम walk हमेशा with देख man. सकते हैं कि ऐसे लोग थे जो परमेश्वर के साथ चले और ऐसे लोग थे जो दूसरे लोगों के साथ चले। See, with whom we are walking? हम किसके साथ चलते हैं? Are we walking with God or are we walking with man? क्या हम परमेश्वर के साथ चलते हैं या हम लोगों के साथ चलते हैं?
if we decided to walk with God, अगर हमने फैसला किया है परमेश्वर के साथ चलने का, are you listening? Delay. yes pastor, maybe some network problem. You are typing something. My network problem. Yes pastor. Okay. So we need to make the priorities right. और हम लोग को अपनी प्राथमिकताओं को सही रखना है. Amen. So one of the priority should be walking with God, not walking with man. और हमारी एक प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि हम परमेश्वर के साथ चले, मनुष्य के साथ नहीं. So in the walk with God, we need to purposefully make time and prepare altars to have closer communion with God. और परमेश्वर के साथ हमारी चाल में हम इस बात का ध्यान रखना है कि हम समय निकालें कि हम वेदियों को बनाएं और परमेश्वर के उद्देश्य के साथ हम रहें. When you walk with God, you became a builder of altars. और जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं तो आप वेदी के बनाने वाले बन जाते हैं. The altar in our life are not to be random. और हमारी जो वेदी में जो हमारे जीवन में जो वेदी बनती हैं वो ऐसी नहीं होनी चाहिए. They are to be carefully constructed. लेकिन ध्यान पूर्वक उनको बनाया जाना चाहिए. The altar is not built merely in places of crisis or stress. और जो वेदी है वो किसी पीड़ा के या परेशानी या तनाव के वातावरण में नहीं बनाई जाती. But the altar is to be daily place when we go to allow God to shape us to लेकिन be वेदी, like Him. एक ऐसा स्थान है वेदी जहां पर प्रतिदिन का स्थान है, जहां पर हम जाते हैं और परमेश्वर को अनुमति देते हैं कि वो हमको बनाए जैसा कि वो है. The altar was the first thing that met the priest on his way to the Holy of Holies. और वेदी वो स्थान है जो पहली उस याजक से मिलता है जब वो अति पवित्र स्थान में जाता है. The altar was the centerpiece of the temple. और वेदी जो है वो उस मंदिर का मध्य भाग था. Altar is not just the place of sacrifice, it is also a place of judgment, and it's a place of worship and a place of devotion. और वेदी केवल बलिदान का स्थान नहीं है लेकिन वो न्याय का स्थान है और वो निष्ठा का स्थान है. So when we purposefully dedicate our life and take time to build our altars and give importance to our altars, let me tell you that God in our life, this altar can change to be a blessing in our life. और जब हम लोग समय निकाल के इस वेदी को अपने जीवन में बनाते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो वेदी हम बनाते हैं ये हमारे जीवन में एक बदलाव का कारण बन सकता है. There are 5 great altars in the life of Abraham. इब्राहिम के जीवन में 5 बड़ी वेदियां थी. The first one was the altar he built in Shechem. पहली थी जो उसने शेकेम में वेदी को बनाया था. That we can see in Genesis chapter 12 verse 5 to 7. वो हम लोग उत्पत्ति 12:5 से 7 में देख सकते हैं. Shechem was the first altar of Abraham. और शेकेम जो है वो इब्राहिम का पहली वेदी थी. He built his altar soon after his calling of God to leave Ur. और वो वेदी थी उसने तुरंत बनाई थी जब उसने ऊर से वो निकला था. So first altars are always important to men. तो पहली वेदी हमेशा लोगों के लिए बहुत ही जरूरी होती है. They always carry memories of their first moment or first journey begins with God. और वो हमेशा उन यादों को लेकर चलते हैं जब परमेश्वर के साथ उनकी यात्रा शुरू हुई थी. But the most problem of many of us is we are just satisfied with our first altar. लेकिन हम में से बहुतों की समस्या ये है कि हम लोग अपनी पहली वेदी से ही संतुष्ट रह जाते हैं. Or the first experiences we had with the Lord in the beginning of our journey, and we are satisfied with that. और जो भी पहले शुरुआती अनुभव हमारी यात्रा की शुरुआत में परमेश्वर के साथ हमारे हुए उसमें हम संतुष्ट रह जाते हैं. We can see in Abraham's life that was not the only one altar that he built, but that was just the beginning.
और अब्राहम के जीवन में हम देख सकते हैं कि वो केवल एक मात्र वेदी नहीं थी जो उसने बनाई, लेकिन वो केवल एक शुरुआत थी। What is the meaning of the name Shechem? शेकेम नाम का अर्थ क्या है? Shechem means shoulder. उसका मतलब होता है कंधा। Hallelujah. In Isaiah chapter 10 verse 27 it says in this way, यशायाह 10:27 में इस प्रकार से कहता है, His burden shall be taken away from off their shoulder, and his yoke from their neck. The yoke shall be destroyed because of the anointing. और उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा, और अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ डाला जाएगा। So Abraham learned first that his altar was to be a place where he left his burdens. और इब्राहिम इस बात को समझ गया कि उसकी वेदी वो स्थान था जहां पे उसने सबसे पहले अपने बोझ को छोड़ा था। Amen. Let we leave all our burdens on our altar. और हम लोग अपना सारे बोझ को अपनी वेदियों पर छोड़ दें। Oh, Abraham left his uncertainty about tomorrow in the first altar of Shechem. और इब्राहिम ने अपनी आने वाले कल की अनिश्चितता को अपनी उस वेदी पर छोड़ दिया जो उसने शेकेम में बनाया था। He left all his doubt, he left in the altar. उसने अपने सारे संदेह को उस वेदी पर छोड़ दिया। What burdens do you have in this day? क्या बोझ है आपके ऊपर आज के इस दिन में? Are you willing to leave these burdens into an altar? Hallelujah. क्या वेदी पर आप इन बोझ को छोड़ने के लिए तैयार हैं? It can be a burden of sin or a guilt or even a failure or even an uncertainty or even a fear. Leave it in the altar in this morning. वो पाप का बोझ हो सकता है, वो भय का बोझ हो सकता है, वो अनिश्चितता का बोझ हो सकता है, वो दुविधा का बोझ हो सकता है, उसको आप लोग उस वेदी पर छोड़ दें। Stop putting our burdens on others. दूसरों पर अपने बोझ को आप रखना छोड़ दें। You know, sometimes all our uncertainty, all our fear, we put these burdens upon our children or upon our family members, upon our wife or husband. और कई बार ये बोझ हम लोग अपने परिवार, अपने परिवार के सदस्यों पर, अपने पति पत्नी बच्चों पर डाल देते हैं। Let's put all our burdens on the altar. लेकिन आइए हम लोग ये सारा बोझ उस वेदी पर डाल दें। That was just the beginning of Abraham's life. और वो अब्राहम के जीवन की केवल शुरुआत थी। But in the beginning itself, he left all his burdens on that altar. लेकिन Amen. शुरुआत में ही उसने अपने सारे बोझ को उस वेदी पर छोड़ दिया। Your altar can become a shoulder for you और आपकी वेदी आपके लिए कंधा बन सकती है to bear all your burdens. आपके सारे बोझ को उठाने के लिए। Abraham understood this altar is a shoulder for me. इब्राहिम समझ गया कि ये वेदी मेरे लिए कंधा है। And the second altar he built was on Bethel. और दूसरी वेदी जो उसने बनाई वो बेथेल में थी। 2 altars he built in Bethel. 2 वेदियों को उसने बेथेल में बनाया। In Genesis chapter 12 verse 7 to 8 and 13th chapter 3 to 4 we can see 2 altars he built in Bethel. और उत्पत्ति 12:7 से हम देख पाएंगे और 13 उसमें 1 से 5 में हम देख पाएंगे कि उसने 2 वेदियों को बनाया। The first one was built after God has extended a covenant to Abraham. और उसने पहली वेदी को तब बनाया जब परमेश्वर ने एक सहायता इब्राहिम की ओर दी। Oh, hallelujah. Many times we are happy with this altar. कई बार हम लोग इस वेदी से खुश होते हैं। When God has extended his blessing, we built an altar. और जब परमेश्वर अपनी आशीष को हमारी ओर बढ़ाते हैं तब हम एक वेदी को बनाते हैं। When God has promised something amazing, we are willing to sacrifice. We are willing to build an altar. और जब परमेश्वर हमारे लिए कुछ करते हैं, हमें कोई आशीष देते हैं तो हम लोग एक वेदी को बनाने के लिए इच्छुक हो जाते हैं। But in the same place, Abraham came back second time after his failure in the land of Egypt. लेकिन दूसरी बार में इब्राहिम एक असफलता के साथ वापस आया उस अपनी भूमि पर। He came to Bethel after a famine. वो एक अकाल के बाद बेथेल में आया। He came to Bethel after lying to Pharaoh about the identity of Sarah.
और सारा की पहचान को लेकर फिरौन से झूठ बोलने के बाद वो बेथेल में वापस आया। He came to Bethel blessed with cattle, silver and gold. Amen. और वो बेथेल में चांदी और सोने और भेड़ बकरी से आशीषित होकर आया। So regardless of all our possessions and whatever we have is a blessing or not blessing, or in our failure or in our lives, we must have an altar. Amen. और हमारे जीवन में चाहे जो भी हालात हो, जो भी आशीष हो, जो कुछ भी हो, हमें उसके ध्यान ना रखते हुए भी हमको वेदी को बनाना चाहिए। Not only just at the time of blessing. केवल आशीषों के समय में नहीं। Are you willing to build an altar at the time of famine? क्या आप अकाल के समय में भी एक वेदी बनाने के लिए तैयार हैं? Are you willing to build an altar after your failure? क्या अपनी असफलता के बाद भी आप एक वेदी बनाने के लिए तैयार हैं? Hallelujah. Are you willing to build an altar for a change? क्या एक बदलाव के लिए आप एक वेदी को बनाने के लिए तैयार हैं? Yes, God says your altar will be a blessing, like a blessing in Abraham's life. हाँ, परमेश्वर कहते हैं तुम्हारी वेदी भी तुम्हारे लिए एक आशीष का कारण बनेगी, जैसे कि वो इब्राहिम के जीवन में बनी। Oh, Bethel means house of God. Hallelujah. बेथेल अर्थ होता है परमेश्वर का भवन। The house of God is the altar that Abraham came the most. और परमेश्वर का घर ही वो वेदी थी जहां पर इब्राहिम सबसे ज्यादा आया। Our greatest altar is the house of God. Amen. हमारी सबसे बड़ी वेदी है परमेश्वर का घर। Oh, hallelujah. Let's with repentance, with the consecration, or with all our blessing, with a spiritual guidance, with worship, with praise. Let us gather and come together as a church and build our altar so that can transform many people and can also bring a revival in our nation. Hallelujah. और आइए हम लोग क्यों ना उन सभी चीजों को हटाते हुए अपनी सारी बातों को देखते हुए हम लोग एक कलीसिया के रूप में मिलकर हम लोग आए और एक वेदी को बनाए जो हम सब के लिए एक आशीष का कारण बनने पाए। Okay, on our daily walk with God, one of the priority should be altars. Hallelujah. और परमेश्वर के साथ हमारी जो प्रतिदिन की चाल है उसमें हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए वेदी। Altar is the place where we put all our burdens. वेदी वो स्थान है जहां पर हम लोग अपने सारे बोझ को डालते हैं। Altar is the place where we praise and thankful to God. वेदी वो स्थान है जहां पर हम स्तुति करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। Altar is the place where we go run unto God for help at the time of famine. वेदी वो स्थान है जहां पर हम लोग परमेश्वर की ओर दौड़ के जाते हैं अकाल के समय में। Amen. Altar is the place where we consecrate ourselves. वेदी वो स्थान है जहां पर हम लोग खुद को परमेश्वर के लिए अलग करते हैं। And altar is the place where you experience the presence of God. और वेदी वो स्थान है जहां पर आप परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव करते हैं। And the third altar Abraham built was in Hebron. और तीसरी वेदी जो इब्राहिम ने बनाई वो हेब्रोन में थी। Oh, in Genesis chapter 13 verse 18. उत्पत्ति 13 के 18 में हम देख सकते हैं। He removed his tent and came and dwelt in the place of Mamre, which is in Hebron, and built there an altar unto the Lord. इब्राहिम ने अपना तंबू उखाड़कर मेम्रे में वांज वृक्ष के बीच में जो हेब्रोन में था जाकर रहने लगा और वहां भी परमेश्वर के लिए एक वेदी को बनाया। After Abraham has been separated himself from Lot and his herdmen, और जब इब्राहिम ने अपने आप को लूत और उसके लोगों से अलग कर लिया, Abraham built another altar. इब्राहिम ने एक और वेदी को बनाया। There are times in our lives that we need to cut down some relationships. हमारे जीवन में ऐसे समय आते हैं jab हमें कुछ रिश्तों को काटना होता है। So when the time of separation finally comes, when all the distractions have been discarded, we need to build an altar. और जब अलग होने का समय आता है, जब सारी ध्यान भटकाने वाली चीजें अलग करती जाती हैं, उस वक्त हमको एक वेदी बनाने की जरूरत है। Hallelujah, hallelujah. So the altar can be a place where we can focus unto God. वेदी एक ऐसा स्थान हो सकता है जब हम परमेश्वर की ओर ध्यान लगाते हैं। The altar can be a place where we can, when we are broken, when we are alone, we can run unto God. Amen. वेदी एक ऐसा स्थान हो सकता है जब हम अकेले हो, कमजोर हो, टूटे हुए हो, तो हम लोग परमेश्वर की ओर दौड़ के जा सकें।
See, once Abraham get rid of Lot, now the full will of God has began to fulfill in the life of Abraham. तो देखिए अब्राहम जब लूत से अलग हो गया था, परमेश्वर की इच्छा उसके जीवन में पूरी होने लगी। Hallelujah. You know what is the meaning of Hebron? आपको पता है हेब्रोन का अर्थ क्या होता है? Hebron is a league or a confederacy or alliance. और हेब्रोन का मतलब होता है एक सहमति, एक बड़ी संगति या एक बड़ा गठन। When you cut all other connections that is bringing you closer, then God will make you an alliance with you to establish a partnership with you to fulfill His purpose in your life. और जब आप सारे उन रिश्तों को, उन सारे संबंधों को अलग करते हैं जो आपको जकड़ लेते हैं, उसके बाद परमेश्वर आपके साथ एक गठबंधन करते हैं कि आप उसके अनुसार चलना शुरू करें। So your altar is a place of partnership with God. तो आपकी वेदी वो स्थान है जब आप परमेश्वर के साथ आप लोग सहकर्मी बनते हैं। An altar at Hebron is waiting for those who are willing to rid themselves of the loads that they think are so important. और हेब्रोन की वेदी वो स्थान है जहां पर आप लोग चाहते हैं अपने आप को दूसरों से जो आपको रोकते हैं उनसे अलग कर लेना। Yet we think others they are so important. हम सोचते हैं कि वो दूसरे कितने ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। But Hebron is still waiting in your life. लेकिन हेब्रोन आपके जीवन में इंतजार कर रहा है। Some of the connections that you cut off and go into an alliance with God. और कुछ ऐसे रिश्ते हैं, ऐसे जोड़ हैं जिनको आपको अलग करना है और परमेश्वर के साथ गठबंधन में आगे बढ़ना है। Wow, how important is altar in our lives. और कितना जरूरी हमारे जीवन में वेदी का होना। Another altar that we can see in Genesis chapter 22 verse 2, that is Moriah. और एक और वेदी जो हम देख सकते हैं वो उत्पत्ति 22:2 में देख सकते हैं जो कि मोरिया में था। It was to be Abraham's final altar. और वो इब्राहिम का आखिरी वेदी थी। So it was the altar that shaped him for the rest of his life. और वो वाली वेदी थी जिसने उसके बाकी के जीवन के लिए उसको एक सही आकार दिया। It was an altar that he shrank back from. और वो एक ऐसी वेदी थी जिस पे से वो पीछे हटा। It was an altar that he had to climb a mountain to reach. वो एक ऐसी वेदी थी जिसके लिए उसको एक पहाड़ पर चढ़ना पड़ा पहुंचने के लिए। It was an altar that could crush the heart of Sarah and to pierce the heart of Isaac. वो एक ऐसा वेदी थी जो कि सारा के हृदय को कुचल सकता था और इसहाक के हृदय को घात कर सकता था। Hallelujah. Some altars sometimes bring hurts. कुछ वेदी कुछ बार कुछ तकलीफ को लेकर आते हैं। Some altars need sacrifice. कुछ वेदियों पर बलिदान की जरूरत होती है। There will be altars in our life that will have the same magnitude and it will hurt to make the trek to this altar. और कुछ वेदियां हमारे जीवन में ऐसी होंगी जो उसी प्रकार की होती है और हमारे जीवन में वो किसी प्रकार की कठिनाई को या तकलीफ को ला सकती है। The Moriah demands all our commitment. और मोरिया की जो वेदी है वो हमारे सारे पूरे समर्पण को चाहती है। The Moriah is the place where God can call the father of faith. Hallelujah. और मोरिया ऐसा स्थान है जहां पर परमेश्वर ने अब्राहम को विश्वास का पिता कहा। The Moriah is the place and it's a very sacred place that you can get a new revelation about your God. और मोरिया एक ऐसा स्थान है, एक ऐसा पवित्र स्थान है जहां पर अपने परमेश्वर के बारे में आपको नया प्रकाशन मिल सकता है। Sometimes in our altar, God expects us to give off the most precious in our life. कुछ बार हमारी वेदियों पर परमेश्वर हमसे आशा करते हैं कि जो सबसे ज्यादा कीमती हमारे लिए है हमारे जीवन में वो हम दे दें। You know, the continuous walking with God, continuous priority of altars, this altar played a very important role in Abraham's life, that he was even willing to detach the most important expected promise in his life for the Lord.
परमेश्वर के साथ हमारी चाल और परमेश्वर की वेदी पे हमारे बलिदान, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक ऐसी वेदी थी जिसने अपने जीवन भर जिस चीज की आशा करी, वो चीज इब्राहिम से दूर की जा सकती थी। In this morning, आज की सुबह, if you are willing to build an altar, यदि आप एक वेदी बनाने के लिए तैयार हैं, be willing to sacrifice what he asks from you. तो जो भी वो आपसे मांगता है वो बलि चढ़ाने के लिए आप तैयार रहें। Are you willing to? You know, क्या it's so तैयार good. It's good to have an altar that we can put all our burdens. और ये अच्छी बात है कि एक वेदी हमारे पास हो जहां पे अपने सारे बोझ को हम डाल सकें। What about an altar that we put all our desires, all our promises, all our plans, all our agendas, all the best that we have. और ऐसी वेदी जहां पर अपने सारे वायदों को, अपने सारी योजनाओं को, अपनी सारी इच्छाओं को हम लोग, अपने सारे सबसे उत्तम चीजों को हम उस पर डाल दें। The precious, valuable things for you. आपके लिए जो कीमती, महत्वपूर्ण चीजें हैं, Maybe your children are very precious to you. हो सकता है आपके बच्चे आपके लिए बहुत ही ज्यादा कीमती हो। Maybe your family is so precious to you. शायद आपका परिवार आपके लिए बहुत ज्यादा कीमती हो। Are you willing to put it in the altar? क्या आप उनको वेदी पे रखने के लिए तैयार हैं? Are you willing to see? Are you willing to offer it before God? क्या परमेश्वर के सम्मुख आप उनको भेंट चढ़ाने के लिए तैयार हैं? Your greater revelation about your God is waiting when you build this altar. और परमेश्वर के लिए आप बड़ा प्रकाशन आपका इंतजार कर रहा है जब आप इस वेदी पे जाते हैं। The problem is, many of us became not man of altar, but we became man of tents. और कई बार समस्या की बात ये हो जाती है, हम लोग वेदी के लोग नहीं बनते, लेकिन हम लोग तंबू के लोग बन जाते हैं। Abraham and Lot, when you take the comparison, we can see this. जब इब्राहिम और लूत का आप लोग तुलना करेंगे तो इस बात को आप लोग देख पाएंगे। Abraham built his altars, but Lot pitched his tents. इब्राहिम ने तो वेदियों को बनाया, लेकिन लूत ने तंबुओं को बनाया। Abraham had his own altars, but Lot borrowed Abraham's altars. इब्राहिम के तो खुद की वेदियां थीं, लेकिन लूत ने उसकी वेदियों को मांगा। Not one single reference of Lot building his own altar. और एक भी हम लोग पद नहीं देख सकते हैं, हवाला नहीं देख सकते बाइबल में जब लूत ने वेदी को बनाया हो। Abraham walked by faith, but Lot walked by sight. इब्राहिम विश्वास के द्वारा चला, लेकिन लूत जो वो देखता था उसके अनुसार चला। Lot's eyes lingered too long on the well-watered plains of Jordan, but Abraham's eyes lingered to the presence of God. लूत की नजरें तो बढ़िया भूमि पर टिकी रहीं, यॉर्दन के किनारे, लेकिन इब्राहिम की नजरें परमेश्वर पर टिकी रहीं। The man of altar, Abraham, became generous and selfless, but the Lot, the man of tent, was worldly and greedy. और जो इब्राहिम था, जो वेदी का व्यक्ति था, वो उदार बना और वो अच्छा बना, लेकिन जो लूत था वो संसारिक और लोभी व्यक्ति बना। Abraham looked for a city whose builder and maker was God, but Lot found a city built by men and destroyed by God. और इब्राहिम ने एक ऐसे शहर को देखा जो परमेश्वर के द्वारा बनाया गया था, लेकिन लूत ने एक ऐसे शहर को देखा जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया था और परमेश्वर के द्वारा नाश किया गया। Are we man or woman of tent, or are we a man or woman of altar? क्या हम लोग वेदी के लोग हैं या फिर हम लोग मनुष्य के लोग हैं? The tent have to be pitched. They are a temporary dwellings. और तंबू वो स्थान होता है जिनको लगाया जाता है और वो अस्थिर कुछ समय के लिए वो रहने का स्थान होता है। But altars have to be built and they should be permanent place in our lives. लेकिन वेदी वो होती है जो बनाई जाती है और जो हमारे जीवन में पक्की रहती है, सदा की रहती है। The tents used to supported by ropes and poles to hold on. और तंबू तो जो है वो रस्सी और कील के द्वारा उसको थामे रहने के लिए बनाए जाते हैं। You know, the tents need rods and poles to support it. और तंबुओं को
डंडे और रस्सियां चाहिए होती हैं सहारा देने के लिए, but altar are there to support you. लेकिन वेदी होती है आपको सहारा देने के लिए। The tent will never hold you, but an altar will hold you. तंबू कभी आपको नहीं थाम पाएगा, लेकिन वेदी आपको थामेगी। The tent are made with inferior materials, और तंबू जो है वो कुछ कम महत्वपूर्ण चीजों से बनाए जाते हैं, but altar is made with commitment. लेकिन वेदी जो है वो समर्पण के साथ बनाई जाती है। The tent is where man lives, but an altar is where God lives. तंबू वो स्थान है जहां पर मनुष्य रहता है, लेकिन वेदी एक वो स्थान है जहां पर परमेश्वर रहते हैं। Tent is the place where Sarah laughed for doubt, but an altar is the place where the fire of God fell for Elijah. तंबू एक वो स्थान है जहां पर सारा दुविधा के कारण हंसी थी, लेकिन वेदी वो स्थान है जहां पर परमेश्वर की आग एलिया के लिए उतर के आई थी। So evaluate our life and see, are we building the tent or are we building the altar? अपने जीवन का मूल्यांकन करें और देखें कि क्या हम तंबू बना रहे हैं या वेदी बना रहे हैं। Some of us are still pitching the tents और हम में से कुछ लोग अभी केवल तंबू ही लगाते जा रहे हैं and forgetting the altars. और वेदी को भूल रहे हैं। Some of us are borrowing the altars of our parents or the others, or borrowing the altars of the pastor or the leaders. और हम में से कुछ लोग हैं जो कि अपने माता पिता की वेदियों को उधार मांगते हैं, अपने पासबान अपने अगुओं की वेदियों को उधार मांगते हैं। Some of us are putting our eyes on the plains of Jordan. और हम में से कुछ लोग हैं जो कि यरदन के किनारे के स्थान पर अपनी नजरों को लगाते हैं। To the tent of a brighter future, a brighter career. एक अच्छे भविष्य को पाने के लिए तंबू लगाते हैं। Your career has to have an altar, and a permanent altar in your life. आपके जीवन में आपको एक पक्का, एक स्थिर वेदी रखने की जरूरत है। Sometimes when you became a man of altar, you may not have a permanent tent in this earth. और कुछ बार जब आपके जीवन में वेदी होती है तो आपका इस पृथ्वी पर पक्का स्थान नहीं रहता हमेशा। But doesn't matter. लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता। God is preparing a better place for each one of us. परमेश्वर इस वक्त आपके लिए बेहतर स्थान को बना रहा है। It doesn't mean that God was not blessed Abraham. और इसका मतलब ये नहीं है परमेश्वर ने इब्राहिम को आशीष नहीं दी। God blessed Abraham abundantly. परमेश्वर ने इब्राहिम को बहुत आशीष दी। God fulfilled all his promises that he promised to Abraham. परमेश्वर ने वो सारे वायदे जो उसने इब्राहिम से किए थे वो उसको पूरा किया। Oh, and God called him. He was a man of faith, and he is a friend of mine. परमेश्वर ने कहा ये विश्वास का व्यक्ति और मेरा मित्र है। How many of you want us to be a friend of God? कितने लोग चाहते हैं कि हम परमेश्वर के मित्र बने? Let us not be a man of tent. Let be a man of altar, or a woman of altar. और हम लोग तंबू के लोग नहीं, लेकिन हम लोग वेदी के लोग बने। You know, building an altar takes a lot of effort. और वेदी को बनाना बहुत से प्रयास को लेता है। Oh, when Elijah saw the altar was broken on the Mount of Carmel. और जब एलिया ने देखा कि कारमेल के पर्वत पर वो वेदी टूटी, Oh, he built the altar. तो उसने वेदी को बनाया। He collected the stones. उसने पत्थरों को जमा किया, He put it together. एक साथ रखा, He built an altar. एक वेदी को बनाया And he called unto God. और परमेश्वर को पुकारा And God did a supernatural miracle. और परमेश्वर ने एक अलौकिक चमत्कार को किया। In this morning, I want to tell you that some of our supernaturals are waiting.
और मैं आपको बताना चाहता हूँ आज की सुबह कि कुछ अलौकिक है जो आपका इंतजार कर रहा है। Oh, it's just waiting because we are not building our altars. Hallelujah. और वो केवल इंतजार कर रहा है क्योंकि हम लोग अपनी वेदियों को नहीं बना रहे। Oh, in this morning, let's say to God, Lord, I want to be a man of altar. Amen. और आज परमेश्वर से कहिए कि मैं वेदी का व्यक्ति होना चाहता हूँ। A man of commitment. एक समर्पण का व्यक्ति होना A चाहता हूँ। man of purpose, a man of priority, a man of hallelujah, dedication. एक उद्देश्य का, प्राथमिकता का, समर्पण का व्यक्ति होना चाहता हूँ। A man of prayer, a man of submission. Amen. और एक प्रार्थना का और समर्पण का व्यक्ति होना चाहता हूँ। Will you build an altar? क्या आप एक वेदी को बनाएंगे? Not just an altar for put all your burdens, और केवल अपने बोझ को डालने के लिए नहीं, but we built an altar where you can run unto God and say to God, Lord, I am failed. मैंने गलती किया है, मैं हार गया है. I lied, I made mistakes. You can और cry मैंने झूठ unto बोला, God. मैंने You can- गलतियां करी। एक ऐसी You वेदी can- बनाए जब आप दौड़ के जाएं, It can be a place of restoration. और वो पुनर्स्थापना का एक स्थान हो सकता है, It can be a place of worship. वो आराधना का एक स्थान हो सकता है, It can be a place where you pour your heart before God. और वो एक ऐसा स्थान हो सकता है जब परमेश्वर के सामने अपने हृदय को आप उंडेल दें। It can be a place where you call unto the name of the Lord. वो एक ऐसा स्थान हो सकता है जहां पर आप परमेश्वर के नाम को पुकारें। It can be a place where the miracles are waiting. Hallelujah. वो एक ऐसा स्थान हो सकता है जहां पर चमत्कार इंतजार करते हैं। The heavenly fire is waiting. वो स्वर्गीय आग इंतजार करती है। Oh, it can be a place where we sacrifice the best what we have. वो एक ऐसा स्थान हो सकता है जहां पर हम सबसे उत्तम की बलि चढ़ाते हैं। Oh, the greatest. Hallelujah. वो सबसे उत्तम। Maybe the place where we sacrifice our identity. वो स्थान जहां पर शायद हमने अपनी पहचान को भी बलि चढ़ा दिया हो। Maybe there's a place that where we sacrifice the precious people in our lives. शायद ऐसा स्थान हो जहां पर हमने अपने जीवन में महत्वपूर्ण, अपने जीवन के कीमती लोगों को भी बलि चढ़ा दिया हो। If God is your priority, यदि परमेश्वर आपकी प्राथमिकता है, you will be a priority for Him. तो आप उसके लिए प्राथमिकता बनेंगे। When you become a priority of God, और जब आप परमेश्वर की प्राथमिकता बनेंगे, He will be stopping the suns and moons for you. आमीन, तो वो सूरज और चांद को आपके लिए रोक देगा। So I understood one thing: when you became a priority of God, और एक बात मैं समझ गया, gosh. जब आप परमेश्वर की प्राथमिकता बनते हैं, oh hallelujah, there will be nothing that God will be doing without telling you. तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो परमेश्वर आपको बताए बिना करेंगे। When you became a priority of God, hallelujah, जब आप परमेश्वर की प्राथमिकता बनेंगे, when you call unto God, God is willing to open the heavens for you. जब आप परमेश्वर को पुकारेंगे तो वो आपके लिए स्वर्ग खोलने के लिए तैयार रहेगा। Amen. When you became a priority of God, जब आप परमेश्वर की प्राथमिकता बनेंगे, He is willing to stop the nature for you. Amen. तो Hallelujah. वो आपके लिए इस कुदरत को रोक देगा। Oh, Rabba Shandara Riyamana. Make Him our priority. उसको आप अपनी प्राथमिकता बनाइए। Let's build our altars. अपनी वेदियों को बनाए हम लोग, It's not sometimes, daily, और कुछ बार नहीं, प्रतिदिन purposefully, उद्देश्य के साथ, with purpose, उद्देश्य के साथ, with commitment, with priority. समर्पण के साथ, प्राथमिकता के साथ। If you are a man of priority, यदि आप प्राथमिकता का व्यक्ति हैं, you will never be ashamed. तो आप कभी भी शर्मिंदा नहीं होंगे। You become a man of priority, आप प्राथमिकता के यदि व्यक्ति हैं, you will never lose. कभी आप खोएंगे नहीं, हारेंगे नहीं। I'm sure about it. मैं जरूर जानता हूँ इस बात को। You may not have much of the worldly things, हो सकता है बहुत सी संसारिक चीजें आपके पास ना हो, but you will be a success. लेकिन आप एक सफलता होंगे, You will be an influencer. आप एक प्रभावशाली व्यक्ति होंगे। Hallelujah. Heaven will stood with us. स्वर्ग हमारे साथ खड़ा होगा। Are you willing to build the altar? क्या आप वेदी बनाने के लिए तैयार हैं? The altar should be built as God says us. और वेदी जैसे भी हमें परमेश्वर बताए वैसी बनानी चाहिए। Are you willing to build your altar according to the word of God?
क्या आप तैयार हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार वेदी को बनाने के लिए? Fire will come. Amen. आग आएगी, Anointing will come. अभिषेक आएगा, Revival will come. जागृति आएगी, Miracles will come. चमत्कार आएंगे, Supernatural will happen. अलौकिक होगा, Our children will be blessed. हमारे बच्चे आशीषित होंगे। Our home is not important. Our altar should be our priority. हमारा घर इतना जरूरी नहीं, लेकिन हमारी वेदी बहुत महत्वपूर्ण है। God will take care of everything. परमेश्वर सभी चीजों का ध्यान देंगे। God will take care of everything. परमेश्वर सब चीजों का ध्यान देंगे। God will take care of everything. परमेश्वर सब चीजों का ख्याल रखेंगे। Shall we close our eyes अपनी आंखों को बंद करें and let's take a dedication. Lord, I want to be a man or woman of altar. और एक समर्पण हम लोग ऐसा करें कि परमेश्वर मैं वेदी का व्यक्ति होना चाहता हूं। Every time. हर वक्त When you need a change, जब आपको कोई बदलाव चाहिए, if you are a man of altar, यदि आप वेदी के व्यक्ति हैं, you will not lose any direction. तो कोई भी दिशा को आप खोएंगे नहीं। When Lot took the best, और लूत ने जो अपने अनुसार सबसे उत्तम लिया, God said to Abraham, my son, परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, do you think that is the best? क्या तुम्हें लगता है ये सबसे उत्तम है? Look here and there. इधर उधर देखो, Walk as much you can. जितना तुम चल सकते हो चलो। I'm going to give this land to you and your generation. मैं ये भूमि तुम्हें और तुम्हारी पीढ़ी को दूंगा। Do you think that you lose the direction? क्या आपको लगता है आपने दिशा को खो दिया? Do you think that you don't know where to go? क्या आपको लगता है आपको नहीं पता कि कहाँ जाना है? Because you are a man of altar, क्योंकि आप एक वेदी के व्यक्ति हैं। where you walk will be my direction. जहाँ भी आप Hallelujah. चलेंगे वही मेरी दिशा होगी। When you go, जहाँ भी तुम जाओगे, I am with you and I am your direction. मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं ही तुम्हारी दिशा हूँ। Close your eyes and pray अपनी to आंखों God, को बंद Father. करें और प्रार्थना करें परमेश्वर, Let altars be our priority, Father. वेदी हमारी प्राथमिकता हो। Altar is not just prayer. वेदी केवल एक प्रार्थना नहीं है। Altar is not just a praise or worship. वेदी केवल स्तुति और आराधना नहीं है। Altar is the place where required your commitment, your dedication. वेदी एक ऐसा स्थान है जहां पर आपका समर्पण की आपकी जरूरत है। Yourself has to be sacrificed. आपका स्वयं को बलि चढ़ाना होगा। Father, help us. पिता हमारी सहायता करिए, Help us. हमारी सहायता करिए। Why David has the great desire to build the house of the Lord? क्यों दाऊद में वो बड़ी इच्छा थी परमेश्वर के भवन को बनाने की? Because he was a man after God's own heart. क्योंकि वो परमेश्वर के हृदय स्वरूप व्यक्ति था। If we cannot be a man of God's heart, how we will have heart for God's things? यदि हम परमेश्वर के हृदय स्वरूप व्यक्ति ना बने तो परमेश्वर की चीजों के लिए हमारे पास हृदय कैसे होगा? Let our hearts be full of God. हमारा हृदय परमेश्वर से भरा हुआ हो। And that's why we need altars. और इस वजह से हमको वेदियां चाहिए। There in the altar we can put all the things of our heart and make our heart empty for God. उस वेदी पे हम सारी चीजों को हम चढ़ा सकते हैं और अपने हृदय को परमेश्वर के लिए खाली कर सकते हैं। And everything that you put on altar, it's so important to God. सब कुछ जो आप वेदी पर रखते हैं वो परमेश्वर के लिए बहुत जरूरी है। Holy Spirit, पवित्र आत्मा, make us a man or woman of altar. हमें वेदी का व्यक्ति बनाइए। We seek you, Holy Spirit. हम आपको खोजते हैं पवित्र आत्मा। Make us a man or woman of full of Holy Spirit. हमें
पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति बनाइए। Nothing should take away your altar from our life. कुछ भी हमारे जीवन से आपकी वेदी को दूर ना करे। We may be busy. हम व्यस्त हो सकते हैं। We may be man of tent. हम लोग तंबू के व्यक्ति हो सकते हैं। We may be traveling here and there. हम लोग इधर उधर यात्रा कर रहे हो सकते हैं। Lot of work to do. बहुत सा काम हो सकता है करने के लिए। Lot of things of this world. इस संसार की बहुत सी चीजें हो सकती हैं। Lot of responsibilities. बहुत सी जिम्मेदारियां हो सकती हैं। But as Abraham did, the first thing was building an altar. लेकिन जो पहली चीज इब्राहिम ने करी वो था वेदी को बनाया। Help us, Lord. हमारी सहायता करिए परमेश्वर। Holy Spirit, guide us पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करिए and be with us, Lord. और हमारे साथ रहिए। Thank you, Lord, for speaking to us. हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। In Jesus' most precious name we pray. यीशु के सामर्थ्य नाम से प्रार्थना करते हैं। Amen. Amen. आमीन। Amen. Amen.